बैक पेन आई थिंक एक ऐसा इशू है जो हर हाउस होल्ड में बहुत ही Yes. ज़्यादा कॉमन है. बहुत. Post-COVID, work from home culture has added a new pandemic of back pain and neck pain, which is bigger than COVID. Patients coming from IT sector, software sector, who have a sitting job. Right. Throughout the day, they are on the laptop. They come with back pain and neck pain. Most common. आप स्पॉन्डिलिसिस के बारे में क्या बोलोगे? When does it start and उसका कॉज क्या है? See, spondylosis is somehow like a term which looks scary, but majority of the cases it's not scary. See, we are not bothered about diagnosis. We are bothered about symptom क्या है, उसका रीजन क्या है, एंड उसको ट्रीट करना. क्योर हो सकता है स्पॉन्डिलिसिस? It's not something which is very major. So with posture and your diet, your good protein intake, posture correction, your muscle strengthening exercises, that will automatically reduce that pain and you won't bother about your spondylosis. On long term, you need to make your core strong, which will prevent such episodes happening again and again. Hello, Dr. Sarthak. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Thank you for giving us your time. So, आप एक स्पाइन सर्जन है. Yes. आप थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बता सकते हो कि क्यों आपने ये क्या रीज़न था इस फील्ड को चूज़ करने के लिए? ऑनेस्टली जब मैं 12th में था तो बचपन से डॉक्टर तो बनना था, वो तो फॉर श्योर था. बट जब सर्जिकल फील्ड में जो मज़ा था ना, somehow that attracted me since childhood. And 12th standard में when we were studying, so brain, spinal cord, all those things attracted me, like बहुत मज़ा आता था वो पढ़ने में. And that's when I decided कि न्यूरो सर्जरी फील्ड में जाना है, स्पाइन सर्जरी करना है स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से. सो इट वॉज 12 से डिसाइडेड कि करना स्पाइन सर्जरी ही है. एंड समहाउ मेहनत उसी के लिए की एंड समहाउ डेस्टिनी अलाइंड एंड दैट्स वेयर आई एम नाउ बीइंग प्रैक्टिसिंग एज स्पाइन सर्जन. सो ऐसा कभी ख्याल आया कि अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो कोई और स्पेशलिटी? सो आई वुड से जनरल सर्जरी वॉज माई सेकेंड बैकअप. बट जनरल सर्जरी भी इसके लिए करना था क्योंकि जनरल सर्जरी करके मुझे न्यूरो सर्जरी करना था, नॉट बिकॉज ऑफ के दूसरा कुछ करना था. इधर जनरल सर्जरी करना था या ऑर्थो करके स्पाइन सर्जरी करना, बनना स्पाइन सर्जन था. वाओ, वेरी अहेड ऑफ द टाइम. एंड आई थिंक एक वो क्लैरिटी भी मिलती है Yes. फॉर श्योर कि विच डायरेक्शन यू गो इन. लॉट ऑफ आई जो भी मैं मेडिकल स्टूडेंट्स देखती हूँ आज, एक डायरेक्शन नहीं होता है जहाँ पे दे वांट टू बिकम समथिंग, दे डोंट नो व्हाट टू बिकम, Yes. जस्ट जा रहे हैं. तो डज दिस हेल्प व्हेन यू आर strong in your head what you want to become? See, it works both the way. Okay, when you're clear, it becomes very easy, of course. But not everybody will know what is their liking once they experience. So basically, MBBS is the time when every year mein they'll start experiencing, Right. they'll start studying the subject. That's when they start liking it. And that's when they start picking up. Okay, third year, fourth year mein jab aate hain, तभी when they start attending medicine, surgery, हाँ, I like this, I don't like this. So, in fact, I'll tell you a very funny incident. I wanted to be a spine surgeon, but I never wanted to be an orthopedician. Like there used to be. Okay, okay. So, ऐसा था कि there were 2-3 fields which I was sure in my head कि ये करना नहीं है. And one of them was ortho. And I attended my internship days. And internship में ortho में इतना मजा आया कि I changed from general surgery as my first preference to ortho as my first preference and general surgery as the second one. Oh, wow. So it turned that way. So of course, so it's your experience when you attend, when you learn those things practically. That's when you realize कि हाँ, you like this more. Otherwise, you have them like जो पहले you have it in your head कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, I will like this. But once you experience it, you realize it better. Right. So there's this one factor Yeah. when, for example, अगर किसी को पकड़ लो डर्मैट बनना है Correct. and then they
with the practice they understand कि this is not who I am, Hmm. or I'm not enjoying. ऐसा आपको कभी लगा कि when you had this Hmm. mm, like when you choose this field कि you want to become a spine surgeon, Mhm. but what if you like it or you don't like it when you go inside the field? Never that kind of a thing because I Hmm. always liked it. And the day I entered in ortho, fortunately, where I did my post graduation from, it was one of the prime institute for spine surgeries. Mhm. So I was exposed to spine surgery from very start of my career Okay. of PG days. So we used to assist, we used to do surgeries that time also. On an average, that center used to cater around 6 to 7 surgeries every day of spine. So I have seen like all the varieties of spine, and with each surgery it was like हाँ नहीं बस यही करना है. Hmm. So ऑर्थो खत्म जल्दी करना है and उसके बाद spine में enter होना है. You got good exposure. I got good exposure from my PG days for spine. So so जैसे आपने अभी explain किया, आप बता सकते हो what does a spine surgeon do? Okay. एक सबसे बड़ा मिथ होता है कि स्पाइन सर्जन के नाम के पीछे सर्जन आया मतलब वो सिर्फ सर्जरी करता है. सो दैट इज लाइक द बिगेस्ट मिथ आई वुड से. स्पाइन सर्जन इज समवन जो कॉमन बैक और नेक रिलेटेड कंडीशन को ट्रीट करते हैं, Okay. विच कुड बी के सर्जिकली हो सकता है, मेडिसिन से हो सकता है, फिजियो से हो सकता है. Hmm. एंड 95% से भी ज़्यादा लोगों को मेडिसिन और फिजियो से ही होता है. सो Hmm. सर्जन का नाम अटैच होने से वैसा नहीं है कि आप उनके पास जब जाते हो स्पाइन सर्जन के पास तो आपको स्पाइन सर्जरी ही बोलते हैं. Right. स्पाइन सर्जन का मतलब है हु स्पेशलिस्ट इन स्पाइन. सो आई रादर कॉल माई सेल्फ एज स्पाइन स्पेशलिस्ट रादर देन स्पाइन सर्जन, समवन हु डील्स विद स्पाइन. सो एनीथिंग विच इज नेक पेन, बैक पेन, पैर में दर्द जा रहा है, हाथ में दर्द जा रहा है, सो दोज आर द कंडीशन विच अ स्पाइन स्पेशलिस्ट विल टेक केयर ऑफ. Okay. So आपको ऐसा लगता है कि स्पाइन सर्जन सुन के बहुत लोग आते ही नहीं हैं? I have seen it. अच्छा. So in my practice, patients आते हैं मेरे पास and they're worried. They tell also. हाँ हाँ. Once consulting के बाद they're relaxed कि मैंने सर्जरी नहीं बोला and then they open up saying कि we were worried कि हम स्पाइन सर्जन के पास जाएंगे तो हमें सर्जरी ही बोलेंगे. Hmm. So that worry factor because of that surgeon associated with the name, तो वैसा नहीं होता. Hmm. इनफैक्ट बहुत रेयरली सर्जरी बोली जाती है. आई थिंक ये समझना ज़रूरी है कि आपके हर कंडीशन के लिए सर्जरी नहीं लगेगा. 100%. बहुत सारी चीज़ें क्योर कर सकती है. जैसे आप बता Yes. सकते हो पर्टिकुलर डायग्नोसिस के बाद कि क्या टेक केयर करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए. मेन स्टेप है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है स्पाइन रिलेटेड या कोई मूवमेंट भी रिलेटेड है गेस, Yes. तो आपको अप्रोच करना और एक कंसल्टेशन लेना, Yes. क्योंकि कोई भी आई आई थिंक आप रेकमेंड नहीं करते हो, जैसे आपने पहले भी Yes. बताया था कि स्टार्टिंग में ऐसे इट्स नॉट गुड अंटिल एंड अनलेस कि वो एक बहुत ही रेयर और बहुत ही इमरजेंसी केस है. Yes. So in fact, it's not about surgery also. In fact, जब आप बैक पेन या नेक पेन के साथ आते हो इनिशियली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन एमआरआई की भी ज़रूरत नहीं होती, एक्सरे की भी ज़रूरत नहीं होती. इट इज़ आपका जो सिम्टम्स कैसे है, आपको क्या महसूस हो रहा है एंड मेरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये दो चीज़ डिसाइड्स मेजॉरिटी ऑफ योर ट्रीटमेंट. यूजुअली मैं सुनती भी नहीं, देखा है हाँ हाँ. कि बहुत सारे डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, किसी कोई बैक पेन बोलते हैं या फिर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, करेक्ट. तो जाओ एमआरआई करवाओ. तो आप बैक पेन के बारे में क्या बोलोगे? बैक पेन आई थिंक एक ऐसा इशू है जो हर हाउस होल्ड में बहुत ही ज़्यादा Yes. कॉमन है. बहुत. लेट्स टॉक अबाउट इट. Yes. सो आई वुड से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको कभी बैक पेन नहीं हुआ होगा. हर किसी को कभी ना कभी बैक पेन होता है, राइट. बट हर बैक पेन कोई डिजीज नहीं होता. अच्छा. ओके. सो बैक पेन होना उसका मतलब वैसा नहीं कि मुझे मेजर प्रॉब्लम है. दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग. वेरी रेयरली इन लेस देन 5% ऑफ द पेशेंट्स बैक पेन है तो वो मेजर प्रॉब्लम है वैसा माना जाता है. सो बैक Okay. पेन के जो रीजंस है, इफ आई वुड से, सो ब्रॉडली 5 से 6 रीजन होते हैं जिसकी वजह से बैक पेन होता है. एक होता है कि मैकेनिकल कॉजेस. मैकेनिकल का मतलब है कि अंदर
कुछ डीजनरेटिंग, मतलब जैसे एज रिलेटेड है, वेयर एंड टेयर है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस, जो हमने सुना है. तो दैट इज जस्ट वेयर एंड टेयर प्रोसेस विच गिव्स यू बैक पेन, बट इट डजंट रिक्वायर एनी मेजर इंटरवेंशन इमीडिएटली. ओके. ओके. नेक्स्ट, अगर इन्फेक्टिव है, मतलब बॉडी में, स्पाइन में कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बैक पेन हो सकता है. दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन. थर्ड, अगर ओल्ड एज लेडी है जिनको बैक पेन हो रहा है आफ्टर अ फॉल, या मे बी थोड़ा सा अ माइनर ट्रॉमा के बाद, इट कुड बी अ फ्रैक्चर विच इज कॉजिंग द बैक पेन. नेक्स्ट रीजन, इट कुड बी अ स्लिप डिस्क. स्लिप डिस्क अगर है, मतलब जो दो हड्डियों के बीच में जो गद्दी होती है वो बाहर आके नस को प्रेस करती है, तो उनमें भी होता है कि कमर से लेके दर्द नीचे पैरों में जाता है. सो दैट केस ऑल्सो नीड्स अ डायग्नोसिस. नेक्स्ट कंडीशन होती है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि अंदरूनी सोजिश की वजह से होने वाला बैक पेन. सो ये वाला जो कंडीशन है दैट इज मोर कॉमनली सीन यंग मेल्स में. इनिशियल सुबह के टाइम पे उनको ज़्यादा बैक पेन होता है. दे फील स्टिफ इन द मॉर्निंग एंड इवेंचुअली एज द डे प्रोग्रेसेस दे फील बेटर. सेड इन दैट ये सब कंडीशंस है. द मोस्ट कॉमन इज मैकेनिकल, जिसमें कोई अंडरलाइंग चीज़ नहीं है. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पुअर मसल, जिसमें आपकी मांसपेशी की कमजोरी है, जिसकी वजह से वो बैक पेन हो रहा है. लैक ऑफ एक्सरसाइज है, पुअर पोस्चर है, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मसल वीकनेस, एंड उसकी वजह से बैक पेन हो रहा है. Wow. So back pain could be a lot of reasons, but what distinguish back pain is not MRI, X or anything. आप जब पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं हम, तभी उनके स्पेसिफिक है कि ये बैक पेन ऐसे ही प्रेजेंट करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो दैट विल टेल अस कि हाँ ये बैक पेन इसकी वजह से है, तो इसका ट्रीटमेंट ये करना है. सो इट्स हिस्ट्री विच टेल्स अस कि आपको सिम्टम क्या है. दैट विल डिसाइड योर ट्रीटमेंट. आई थिंक एक बार पेशेंट्स को जब भी बैक पेन होता है, सो जैसे आजकल बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए चीज़ें, एंड पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता था सीधा डॉक्टर के पास करेक्ट. जाते थे. अब ऐसे होता है कि पहले हर चीज़ ट्राई कर लेंगे, यस. जब कुछ वर्क नहीं होगा आई थिंक फिर वो लास्ट स्टेप डॉक्टर के पास आते हैं. करेक्ट. आप क्या बोलोगे इस अप्रोच को? See, majority of the back pain will get better. अच्छा. 95% of back pains without treatment also will get better. Oh wow, this is But rare. Doctor, see, this is why I appreciate some, individuals कि वो ऐसे बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं बताते. So yeah. so there is something called as a red flag signs हम बोलते हैं spine अच्छा. में. So if ये चीजें present है, then you need to see your doctor immediately. Okay, वो रेड फ्लैग्स क्या Which होंगे? is कि अगर आपके गर्दन का दर्द जो है वो आपके गर्दन से लेके नीचे हाथों में आ रहा है, हाँ. हाथों में नमनेस हो रही है, झुंझुनाहट हो रही है, ऐसा लग रहा है हाथ में कुछ फिंगर ग्रिप वीकनेस जैसा लग रहा है, हाथों से चीज़ गिर रही है, या चलते समय इम्बैलेंस हो रहा है. इम्बैलेंस का मतलब है कुछ पकड़ के चलना पड़ रहा है, वैसा कुछ हो रहा है. यस, आपने स्पाइन डॉक्टर को जल्दी दिखाना है. सेकेंड, कमर से लेके नीचे पैरों में दर्द जा रहा है जो बढ़ता जा रहा है, तो अगेन स्पाइन डॉक्टर को जल्दी दिखाना है. यूरिन में या मोशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आप पहले कंट्रोल कर पाते थे, अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो स्पेशली आपके यूरिन को, तो यस यू नीड टू सी इमीडिएटली. थर्ड, आपने बैक पेन के लिए बेसिक ट्रीटमेंट लिया, 2-3 हफ्ते तक लिया, बट इट इज नॉट गेटिंग बेटर Wow. in spite Okay. of. See, normal whenever we have back pain, all of us have a habit कि हम ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन लेते हैं, and it does get better in 4 to 5 days usually. Right. But if it is not getting better, we need to rule out something which is major or not. 90% of the time it won't be major, but we need to rule out. अगर पकड़ लेते एक केस Hmm. जहाँ पे एक 55 to 60 year old lady falls Okay. and develops slip disc, Okay. and फिर later on वो जैसे progress होते हैं, Mhm.
उनको she has problems of control issues of urine Hmm. or stools. Correct. तो इस केस में आप क्या recommend करोगे उनको? सो इट डिपेंड्स। सो अगर ये वाला पेशेंट मेरे पास आता है हु हैज़ बैक पेन जो नीचे पैरों में जा रहा है एंड यूरिन मोशन में इन्वॉल्वमेंट है एज यू आर सेइंग एंड उनको चलने में दिक्कत आ रही है एंड पेन बढ़ रहा है, सो फर्स्ट थिंग आई विल लाइक टू डू इट इज इन्वेस्टिगेट कि एमआरआई करके देखना है इस स्टेज में कि किस रीजन से ये हो रहा है। इज इट रियली स्पाइन या कुछ दूसरा रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। Okay. सो वंस इट इज डायग्नोस्ड कि ये से सपोज फ्रैक्चर है जो पीछे आके नस पे दबाव दे रहा है एंड इसकी वजह से ये हो रहा है, सो इन दैट केस यस सर्जिकल इंटरवेंशन इज नीडेड बट ओनली इन दैट केसेस। अच्छा। सो सिर्फ स्लिप डिस्क है, से सपोज फ्रैक्चर नहीं है और सिर्फ स्लिप डिस्क है तो स्लिप डिस्क की वजह से वो यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं वो देखना जरूरी क्या होता है उससे? हो सकता है बट दैट इज 1 in 100 केसेस। Okay. So not everybody who has a urine involvement will have a slip disc. Right. Most common, see, say suppose a 60-year-old male has a urine problem. The most common reason is prostate. That still remains. Right. Or female में your uterine issues, prolapse है या uterus में fibroid है whatever, that still could be a reason for or pelvic floor की weakness है. That still can be a reason for a urine incontinence. But it could also be the second reason is still because of spine. So we need to rule out. Right. So that once we establish it's because of this, we need to treat. If it is prostate, you treat prostate. So first is the diagnosis always. Right. It's not the treatment. किस reason से ये हो रहा है वो diagnose कीजिए and then we treat it. और उसके फिर accordingly आप steps बोल Yes, सकते of हो course, of course. and फिर patients decide कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। Definitely, definitely. See, majority of the times, spine में treatment is never an emergency. Like less than I would say 2% of the cases where it अच्छा। is emergency. Rest of the times, it is more like I usually tell my patients कि I'm giving you options like a hotel card का menu. So when you go to hotel, you can decide what you want. So Oh, nice. so if you don't have any red flags, what I mentioned, definitely this treatment options will be like an options कि ये try कर लो, ये नहीं हुआ तो ये देखेंगे, ये नहीं हुआ तो last options will see. Like that. आई थिंक बहुत रेयरली कोई डॉक्टर्स इतने ऑप्शंस प्रेजेंट करते हैं। आई थिंक एक और भी उसमें फैक्टर है शायद कि बहुत डॉक्टर्स कुछ कुछ यहाँ पे मैं अगेन आई डोंट वांट टू पुट रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन डॉक्टर्स बट देन जब हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं एंड वो उनके डायग्नोसिस के साथ इतने रिजिड होते हैं कि यू नो दिस इज इट Correct. एंड आप मानो या ना मानो नहीं तो आपको ये हो जाएगा। तो इस टाइम पे बहुत ही पैनिक जोन क्रिएट होता है Yes. जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे डॉक्टर्स स्टेप इन करते हैं वहाँ पे वे यू मेक इट सो इजी फॉर पेशेंट्स कि दे कैन हैव अ रिलैक्सिंग मोमेंट येट नोइंग कि हमें कुछ है Right. और हमारे पास ऑप्शंस है। हमें इमीडिएटली कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा जहाँ पे हमारी लाइफ डेंजर होने वाली है। Spine problem will never put your life at risk. It's never. So you usually like heart problems and spine problems are usually 180-degree opposite. If you're running a marathon and you have a heart blockage, if you get some mild chest pain, you go to a doctor. वहाँ पे आपको दिखाया कि blockage है. They'll tell you, boss, stent डालना है. हाँ। No debate. Spine works other way. Okay, Spine depends में on the अगर special. slip disc है तो and but patient is able to walk, patient is able to manage everything, we won't intervene. It is just medicine and physio से वो ठीक हो जाएगा. So that is what usually patient need to understand and patient को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के ऐसे आउटकम्स हैं, उसमें डर के वी नॉट टेक डिसीजन, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है. सो वंस दे नो इट्स मोर ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजन फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड देन द फाइनल treatment plan is decided. So जो भी कंडीशन है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना इज द की Very important. एंड देन आगे के स्टेप्स वी कैन टेक। Because see, Google is easily available.
nowadays. So Hmm. everybody's gonna Google those things. So Hmm. once as a doctor, somewhere our responsibility कि हम अगर पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि कंडीशन क्या है, इसके आउटकम्स क्या है, इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा. Right. So then they become very relaxed and they will not fall prey of ऐसा unnecessary information available on Google because Google is always gonna scare you. It's not gonna give you a scientific proper advice. Sometimes I tell my patients कि आप पढ़ो गूगल पे, I'll send you the links. जो जर्नल वाले लिंक्स है which we read, we'll send you that. But read those authentic things, not the Hmm. random things which you type on Google and whatever it comes, not that. That's so nice. Yeah. और मुझे लगता है ये सारे पेशेंट्स को एक आइडिया जानना ज़रूरी है Yes. अबाउट व्हाट योर कंडीशन इज, Yes. लेकिन विद ऑथेंटिक Of course. Of इंफॉर्मेशन. course. आई थिंक पॉडकास्ट का भी हमारा वैल्यू, और अभी जो पॉडकास्ट इतने ज़्यादा चल रहे हैं, और हमारा भी वैल्यू, कोर वैल्यू यही है कि वी कैन गिव आउट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थ्रू Correct. स्पेशलिस्ट लाइक यू, ताकि आपने प्रैक्टिस किया है लाइफ में, आप गो थ्रू कर रहे हो वो एवरी डे, आप वो Yes. एक्सपीरियंस कर रहे हो, और दैट्स हाउ आई थिंक इट मेक्स यू क्वालिफाइड टू गिव सर्टेन एडवाइसेस विच Google and Chat GPT is not going to give. So, guys and everyone, whoever are going to that, please. Okay, so coming back to the back pain issues, Yes. and so there is spondylosis भी Hmm. एक बहुत बड़ा फैक्टर है. Hmm. आप spondylosis के बारे में क्या बोलोगे? When does it start and उसका cause क्या है? See, spondylosis is somehow like a term which looks scary, Hmm. but majority of the cases it's not scary. Hmm. So spondylosis, it's just a wear and tear changes. Okay. So simple, जैसे हमारे hair becomes graying of hair जैसा होता है, वैसे ही our spine because of poor posture, lack of exercises और repetitive motions and abnormal positions की वजह से wear and tear process होता है. किसी में जल्दी होता है, किसी में लेट होता है. So spondylosis see a lot of times patient come to us with an X-ray. Hmm. And X-ray में usually लिखा होता है cervical spondylosis visible. Hmm. Majority of the time that spondylosis doesn't hold much of a value Really? because spondylosis is a term which says wear and tear. Hmm. But wear and tear का main reason क्या है? It's your muscle weakness. It's lack of exercise. Your poor posture. So if you correct those factors, we are not really bothered about. See, we are not bothered about diagnosis. We are bothered about symptom क्या है, हाँ. उसका reason क्या है, and उसको treat करना. Naming it a specific thing is just कि हाँ spondylosis है, and then I see patients quite often कि spondylosis है बोल के they roam around years altogether कि मुझे spondylosis का problem है, spondylosis का problem है, but it's not something which is very major. और क्योर हो सकता है spondylosis? So with posture and like your diet, your good protein intake, good like posture correction, your muscle strengthening exercises, that will automatically reduce that pain and you won't bother about your spondylosis. ओह, सो पोस्चर करेक्ट करने के लिए अब जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बेल्ट्स अवेलेबल है Correct. मार्केट में. आप बताओ कि बेल्ट्स का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब कितने इम्पोर्टेंट है बेल्ट्स, और फिर पोस्चर पे भी बात करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है पोस्चर. So belts most common what we see is कि बैक पेन हुआ तो लंबार राइट. कॉलर सेट बेल्ट पहन लो, नेक पेन हुआ तो नेक का वो पट्टा कॉलर लगा के हाँ घूमो. हाँ हाँ. Honestly speaking, those all are a very limited value because अगर लंबार बेल्ट की बात करते हैं सो दैट इज यूजफुल इनिशियली जब अक्यूट पेन होता है. आज बैक पेन शुरू हुआ, Okay. बहुत सिवियर है, हाँ. सो यस 3-4 days इट विल हेल्प. वो क्यों हेल्प करता है? बिकॉज दैट काइंड ऑफ पुट्स योर टमी इनसाइड, लाइक इट मेक्स इट लिटिल स्ट्रेच, Okay. मतलब आई मीन उसको होल्ड करने में. सो योर कोर बिकम्स लिटिल स्टिफ. stiff. हाँ. So वो core and पीछे से it adds as an additional support. So your back pain kind of you feel little better in those kind of situation. अच्छा. But on a long term, it won't really help you. On long term, you need to make your core strong. You need to make आपके back के muscle को strong, core को strong, which will prevent such episodes happening again and again. Exercise is the only way कि जिससे आप डॉक्टर से दूर रहोगे. सो
यूजुअली बेल्स थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू क्योर योर It's not gonna डिसीज। cure. क्योंकि बहुत बार या तो आप पॉस्चर के बारे में Yes, बोल रहे थे, yes. फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पॉस्चर कितना इम्पोर्टेंट है टू अवॉइड व्हाट ऑल डिजीजेस? See, spine के majority of the problems, like, see, there are certain things जो disease है, जैसे infection है या inflammatory है, that is not purely because of posture. But 80% of your back pain and neck pain, if you correct your posture, if you do exercise, if you train your muscles, it will get better. More than 80%, I would say. So, जो posture है, I see very commonly patients coming from IT sector, software sector, who have a sitting job. राइट। Throughout the day, they are on the laptop. They come with back pain and neck pain. Most common. बिकॉज Because स्लाउच। slouch posture है. And now, adding to those things, poor posture ka, it has increased post-COVID because work from home culture has started. ओके। So, post-COVID, work from home culture has added a new pandemic of back pain and neck pain, which is bigger than COVID. वो क्योंकि आप ऑफिस जाते थे तो एटलीस्ट कुछ वॉक होता था, कुछ एक्सरसाइज होता था. देर आर स्टेशंस वेयर यू विल बी वर्किंग ऑन योर डेस्क, सो कुछ तो डेस्क होता था. व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, सोफा पे, in weirdest position possible, on your couch. So all those things add on to your neck pain and back pain. And ऑफिस में जो होता था तभी बीच में यूज टू टेक ब्रेक्स. हाँ चलो कॉफी ब्रेक ले लिया. You can go out and do things. When you're at home, you don't really take that many breaks. So poor posture aggravates your back pain and neck pain. So you need to be like, हाँ ऐसे बैठना है, वो important है. बट वो टाइम लगेगा उस चीज़ को. से सपोज इफ आई टेल यू टुडे कि यू हैव टू सिट इन अ पर्टिकुलर वे, पीछे पिलो रखना है, पैर ऐसे रखना है, हाथ ऐसे रखना है, इट वोंट हैपन ओवरनाइट. इट विल टेक कांस्टेंट रिमाइंडर फ्रॉम योर साइड कि हाँ मुझे ऐसे बैठना है, एंड इवेंचुअली इट विल कम, एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस. इट वोंट गिव यू अ क्विक रिजल्ट. स्लो प्रोसेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी सिंपल स्टेप्स है, लेकिन कॉम्प्लिकेट बना के रख दी है लाइफ। यस, अगर आप देखो आपके एडवाइसेस, इट्स बेसिक, सो बेसिक एंड इट इज. सिंपल, राइट? यस, कि आप थोड़ा मोमेंट बढ़ाओ, यस, आप थोड़े से पोस्चर ठीक करो, हैव गुड फूड, रिच फूड, और यही चीज लैक कर रहा है यस, आधे से ज्यादा यस. मेजोरिटी, एंड हेंस ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस आर कमिंग क्रैपिंग अप. अप। यस. और जितने डॉक्टर्स आ रहे हैं, आई थिंक मेजर सब लोग ये फैक्टर रखते ही रखते हैं यस, कि इट्स अबाउट लाइफस्टाइल, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द लाइफस्टाइल। इट इज. Spine is a lifestyle disease in 80% of the cases. रियली? Yes. वाओ। Majority of your back pains and neck pains are more because of lifestyle related things. Continuous एक जगह पे हम 6 घंटे 8 घंटे बैठे रहते हैं. Again, that causes back pain, neck pain. So राइट। yes. So एक easy, I'll give a very quick tip over here. फोन सबके पास होता है. हाँ। ओके, स्मार्टफोन है आजकल सबके पास है. 45 मिनट्स का अलार्म रख दो. बिकॉज आप जब वर्क में बिजी हो तभी यू कांट रियली रिमेंबर कि हाँ मुझे ब्रेक लेना है. एंड नॉट जस्ट फॉर पेशेंट्स, इवन व्हेन आई एम वर्किंग डिफिकल्ट होता है कि हाँ मुझे ब्रेक लेना है. वैसा राइट। 45 मिनट्स का अलार्म रख दो या 1 घंटे का अलार्म रख दो, डिपेंडिंग अपॉन योर शेड्यूल. एटलीस्ट एवरी 1 hour, गेट अप ऑन द सेम पोजिशन, स्ट्रेच योर सेल्फ एंड सिट. इवन इफ यू कांट वॉक अराउंड, एटलीस्ट स्ट्रेच. एटलीस्ट दैट विल चेंज द पोस्चर, चेंज द पोजिशन, एंड सर्कुलेशन। बहुत फर्क पड़ता है. And if you can walk around, definitely that's like the best thing. But if not that, say suppose if you're in a meeting or something like that, at least stand up. That is doable. आजकल आई थिंक ये ऑफ टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन मैं जितना देख रही हूँ, इतनी सिंपल फैक्टर्स हैं, इतनी सिंपल स्टेप्स है, फिर भी नहीं कर पा रहे लोग। डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ? बिकॉज जब आपका दिमाग राइट नहीं है, आप कैसे राइट हो गए? 100%. सो आप देख रहे हो ये चीज कि It is. With the rise of stress, with the rise of anxiety, with the rise of mental health issues,
Hmm. There is direct correlation with your back pain and neck pain. Really? How Yes, come? because when you are under stress, when your sleep is disturbed, Ah. when you're not in a proper zone, the first thing you'll experience is back pain or neck pain. So that I have seen so many times a lot of patients who come with like a pile of file. Their MRI is absolutely fine. Hmm. Everything is fine, but still pain is there. So we sometimes call this condition as chronic pain syndrome. Acha. So that cycle just keeps repeating, and it's your mental stress and mental health related things. It does aggravate your back pain and neck pain. So definitely, अगर stress कम किया, तो a lot of times your back pain also reduces if it is not pathological, Hmm. like the mechanical back pain we spoke about. So definitely, your good meditation hai, a good relaxing techniques, a good sleeping pattern, a proper 6 to 8 hours of sleep will make you much better. So these are some recommendations कि लोग कर सकते हैं and थोड़ा healthy lifestyle follow Definitely, करके I think it can be managed it can be so well. managed. See, there's no side effect of this. Meditation has no side effect. So ये थोड़ा ऑफ टॉपिक था Yeah. लेकिन इसके बाद एक्चुअली मुझे पूछना था कि आपको व्हाट आर सम बर्थ डिफेक्ट्स आप Mhm. देखते हो लाइफ में अभी तक आपने देखे Mhm. हो या आप पढ़ चुके हो ऐसे कौन से बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में आप थोड़ा बात करना चाहोगे स्पाइनल